record button. So like, for example, you have an enrollment number, and depending upon the enrollment number, what is there in this bit, what is there in their bits, I assign people to different blocks of or different classes and all. Okay. uh, Same way we do in the direct mapping, that we do what, we see the address, we see the addressing, and in the addressing mechanism I say, hey, this is block, this is your tag, this is your index, and this is your tag, for example. So I divide that addressing from here. But now the direct mappings, that particular block of the main memory will go into the particular cache is no more now. That is dead for us, because of this scenario where we have the same block addresses and rest of the, even though the whole cache is empty, but we still cannot put things into it. We have the cache misses. So this is not going to do good to us. So we say bye-bye to it. We say, no, we don't want to do this. So we remove this limitation that specific pages go to the specific block. We say, no, no, no. We say it can go anywhere. If two has come up, let the 2 go here. If this is empty, let the 6 go here. If 2 again come up, let it comes here, and so on. So that way we don't have a page faults and all. But to remember where we have put that page, because that can now, say for example, this one where maybe this was occupied, so I put up 2 here, this was occupied, and so on, I put up 6 here. I don't know where I have put, because there is no direct mapping. Okay, from the address I can the mechanism I can understand that this page has to be here only. It is no more. So what should I do now? So I have to keep the tag of each and every page with the cache now. Now cache has to have a tag, the full tag. Okay, so that I remember. And say for example, I got for example, if I say here Iram has come up, if I say here, for example, this is my cache, and with it I have a tag, and when I load any page, say I load the 12th page, and I load its tag here, the whole address here, whatever the address of that 12 is, and data part I put up here. I put up some 14, say 14th one here, data here, and its whole tag here. So it could be, if I am finding now the 14, it could be anywhere in this. So what I have to do, I have to ask each and every box, are you 14? 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 And one among them will tell me, hey, I am the 14 here, right? So I need a comparators with all of the, this is the like 32-bit address, full tag. So I'm not dividing anything from it and telling it that this will go here or there. It can go anywhere. So I have to store whole 32-bit tag here. Okay, with the data. When I put some data here, its tag will be here, its address will be here, whatever the address it has. Okay, so now the tag is a full 32-bit address. Okay, now when I have to find it, what shall I do? I have to compare this address with each and every block using the comparators. And comparators I told is the equivalence gate. Rutuba Khan has come up. Okay, so one among them, yes, any question? No. So one among them will say it's a true. If none among them say comes true, that means it's a cache miss. It's not a hit, it's a miss. Okay, so that means we had to do something else. We have to go to the main memory and fetch it from there, because where it would be then? It would be in the main memory then, because we have put only few blocks from main memory into the cache. Now if it is not in the cache, that means it has to be in the main memory. So we have to go to the main memory and get it from there, right? But if it's a huge cache, we said that these comparators will become very complex circuit, and this is not a good thing to do. So because the comparator cost is too high, and we have to put up with each and every block, I have to put up the comparators, right? It doesn't look good. It definitely doesn't look good, right? दिखता भी नहीं अच्छा, डायग्राम एक गंदी जैसी बनती है, इसलिए इसको नहीं करेंगे. ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? Kazim will tell us, because I have told you now 10 times this thing. Then what shall we do?
क्योंकि डायरेक्ट मैपिंग का बंदा हमने देखा था कि इजी था, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं कि ये जो आपका ये वाला जो मसला है कि अगर वही ब्लॉक वो आ गए उसमें तो वो मेमोरी जाया हो जाएगी। उसमें एसोसिएटिव मैपिंग बड़ी शानदार थी। तो करना क्या चाहिए? दोनों लेते हैं, तो करना ये चाहिए कि दोनों ले लो, है ना। This is what we did in the set associative mapping. This is what we do. We take both good from the both world. हम कहते हैं डायरेक्ट मैपिंग तेरा वो जो तू वो बोल रहा था कि एड्रेसिंग से निकाल रहा था कि इस ब्लॉक में जाएगा, तो उससे एड्रेसिंग मैकेनिज्म बड़ा सिंपल होता था। मुझे कोई कंपैरेटर लगाने की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ उस एड्रेस बिट को देखता, उससे पता चलता कि किधर होने वाला है, स्टोर कहाँ करूं या पढ़ूं कहाँ पे, ठीक है ना। तो लेकिन उसमें जो पंगा हो रहा था मेरे को कि वो जो मसले थे वहां पे कि भाई वहां पे अगर एक ही एड्रेस आ गया तो परेशानी होगी। तो उसके लिए मैंने किया सेट खड़े किए। क्या खड़े किए? सेट, ठीक है। आई क्रिएटेड अ सेट, सो दैट्स कॉल्ड द सेट एसोसिएटिव कैश। सो एसोसिएटिव में क्या था? एसोसिएटिव में कौन चीज थी? तो मैं इसको फिर से एसोसिएट कर रहा हूं। एसोसिएटिव में क्या थी? कंपैरेटर्स। नहीं मतलब था आइडिया क्या था कि कोई भी फ्रेम कोई भी ब्लॉक ऑफ द मेन मेमोरी गो टू एनीवेयर। लेकिन अब मैंने यहाँ पे कर दिया काम ऐसे, देखो ये मेरी कैश है, ये मेरी कैश है, ठीक है। इसमें ब्लॉक्स हैं, मैंने ये एक सेट बना दिया, वन सेट, इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, ये दूसरा सेट, इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, तीसरा सेट, चौथा सेट वगैरह वगैरह। अब मैं डायरेक्ट मैपिंग का वही कह रहा हूँ कि भाई कि ये जो, मगर मैं अब सेट की बात कर रहा हूँ, पहले मैं फ्रेम की बात कर रहा था ना, मैं सेट की बात कर रहा हूँ कि भाई ये वाला ये फ्रेम सेट में जाएगा, इस सेट में जाएगा। जो एड्रेसिंग से मुझे निकलने वाला है सेट, वो मुझे बताएगा भाई इस सेट में जाएगा, क्या इस सेट के बगैर नहीं जा सकते ये फलानी फलानी पेज। जैसे हम कहते थे यहाँ पे, हाँ जैसे हम यहाँ पे बताते थे कि डायरेक्ट मैपिंग में बताते थे कि देखिए डायरेक्ट मैपिंग में बता रहा था कि ये जो 0 वाला है वो इथे जाएगा, 1 वाला इधर जाएगा, 2 वाले इधर जाएंगे, 3 वाले इधर जाएंगे, है ना, टू द ईच एंड एवरी ब्लॉक, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, मैंने सेट बना दिया कैश के, कैश भी बढ़ा दी मैंने और उसका सेट बना दिया, और कह रहा हूं वही चीज जो मैं उधर कह रहा था वही मैं यहाँ भी कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई कहाँ पे बनाया मैंने, हाँ ये मैं कह रहा हूँ कि भाई ये फलानी पेज सिर्फ इस सेट में जा सकता है, ये फलानी पेज सिर्फ इस सेट में, ये वाला सिर्फ इस सेट में जा सकता है। सो ये हो गया डायरेक्ट मैपिंग का किस्सा, ठीक है। एसोसिएटिव मैपिंग का किस्सा क्या है? एसोसिएटिव में लगा रहा हूँ विद इन द सेट, विद इन द सेट इट कैन गो एनीवेयर। अगर मेरे पास यहाँ पे 5-6 ये है ब्लॉक्स हैं, ठीक है, उनमें से कहीं पर भी जा सकता है। तो उसका मतलब क्या, मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? देखो जो किस सेट में गया वो किससे पता चलेगा? वो डायरेक्ट मैपिंग का किस्सा हो गया ना, वो किससे पता चलेगा? वो उन बिट्स से, वो बिट्स से हम देखेंगे कि किस में चला गया, ठीक है ना, ठीक है। समझ में आ रही है? लेकिन इस अब पता चला कि इस सेट में है, इस सेट में अब मेरे पास मान लीजिए 16 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। इस 16 में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसमें एसोसिएटिव का किस्सा है कि इधर किधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, जहां भी आपकी मर्जी। इस 12 में कहीं पर भी लगाओ, कहीं भी लगाओ। मेन मेमोरी के जो ब्लॉक्स हैं उनका जो है होना है कि वो किसी सेट में ही घुसेंगे। वो डायरेक्ट मैपिंग से हम निकालेंगे कि इस सेट में होने वाले हैं, फलानी 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 इस सेट में होने वाले हैं। लेकिन इस सेट में जब गए उसमें 12 अगर 16 मेरे पास ब्लॉक्स हैं, उस 12-16 में से कहीं पर भी जा सकते हैं। तो वो एड्रेसिंग कैसे निकालेंगे? कंपैरेटर लगाएंगे ना, एसोसिएटिव का किस्सा। तो अब मुझे सेट के अंदर जो बंदे हैं उनको कंपैरेटर लगाने पड़ेंगे, सबको कंपैरेटर नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद हारिस तो यहाँ पे था, अभी फिर से आ गया, कोई बात नहीं। जो कंपैरेटर पहले लगाने पड़ते थे हर एक एड्रेस को हर एक ब्लॉक के साथ, अब यहाँ सेट में, लेकिन वो किस्सा है सेट के अंदर आपको कंपैरेटर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सेट के अंदर कहीं पर भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? अब आप कहोगे कि भाई इस सेट के अंदर मैंने अगर 12 है तो 12 कंपैरेटर लगेंगे ना,
तो दूसरा सेट है उसमें भी 12 अगर है तो 12 उसमें भी तो 12 लगेंगे। यस सर, तीसरा सेट है उसमें भी 12, उसमें भी तो 12 लगेंगे। ये तो वही बिल्कुल किस्सा हो गया एसोसिएटिव का कि हर एक के साथ तो फिर लग रहा है, फिर क्या फायदा गया? जी, समझ में आ रही क्वेश्चन? क्वेश्चन मेरा यस समझ सर, आ गया? मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये सेट है, इसमें 12 है। मानो अब मैंने क्या किया, ये जो शेल्फ ऊपर है ना, शेल्फ में 12 किताबें पहुंच सकती हैं या 16 किताबें पहुंच सकती हैं, ठीक है ना। अब बुक, मुझे पता है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बुक इट हैज टू गो इनटू दिस शेल्फ, टॉप शेल्फ, ठीक है। ये मुझे यस सर, डायरेक्ट मैपिंग से पता चला। लेकिन इस शेल्फ के अंदर जो 16 इसके ब्लॉक्स हैं, कहां जाएगा? किसी में भी जा सकता है। तो जब मैं ढूंढूंगा इसको तो मेरे को कंपैरेटर चाहिए हर 16 ब्लॉक के साथ ढूंढने के लिए ना, कि कहां पर है। वही किस्सा तो होगा दूसरे शेल्फ के साथ, वही किस्सा होगा तीसरे शेल्फ के साथ। तो कंपैरेटर तो 12 16 इसके, 16 इसके, 16 इस शेल्फ के, कंपैरेटर तो फिर भी उतने ही लग रहे हैं ना। यस सर। फायदा क्या आ गया? तो थोड़ा दिमाग लगाओ ना यार। मैंने नहीं किया, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है आप बताओ? आई हैवंट स्लेप्ट not a single bit. What has happened to you? You tell me. What should be there? Use common sense. सर फिर से क्वेश्चन बोलिए। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि अगर हम कह रहे हैं कि एसोसिएटिव मैपिंग में अगर मेरे को ढूंढना है, मैंने अलमारी की बात की, ठीक है, हर एक ब्लॉक के साथ मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि कहीं और भी हो सकती है बुक। Who is talking? उबैद सर Yes. क्योंकि हमें सिर्फ उन्हीं में देखना है, उन्हीं के से कंपैरेटर्स यूज हो जाएंगे। हाँ? सेट एक के हो गए से कंपैरेटर्स यूज। फिर से बताएं। सर एक ही सेट के कंपैरेटर्स यूज हो जाएंगे। यस, क्यों? सर क्योंकि बाकियों का ग्रुप तो कर पता रहे है हैं ना हमें सर डायरेक्ट उसमें से हम। हो गए, डायरेक्ट से हमें पता चल रहा है कि इसी में होंगे, सिर्फ हमें सिर्फ इसी सेट के देखने हैं, हमें बाकियों को जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर दूसरा बंदा आ गया तो उसके लिए दूसरे में नहीं जाना पड़ेगा, जो कि दूसरे सेट में जाने वाले हैं। सर उनके लिए उस टाइम पे करेंगे ना यूज, शायद हाँ क्या करेंगे? उस टाइम पे उनके लिए यूज करेंगे क्योंकि हमें पता है कि इसी फिक्स्ड सेट में होंगे ना। लेकिन जो वाले, जैसे ये हो गया कि बीसीए क्लास में ही जाएंगे, ये हो गया हाँ डायरेक्ट मैपिंग। लेकिन हाँ, उधर जो बेंचेस है, सब बेंचेस सेम में किधर इंडेक्सिंग भी कर उबैद रहे जा थे वहां वो। पे सकता वहां पे हम बेंचेस में कंपैरेटर्स यूज करेंगे। बेंचेस में किधर भी उबैद जा सकता है, ठीक है ना। तो उबैद ढूंढने के लिए मेरे को हर बेंच पे कंपैरेटर लगाना पड़ेगा कि उबैद है तो उधर है कि नहीं, ठीक है। यस सर। अब बीसीए सेकंड का मैं ढूंढ रहा हूँ, बीसीए सेकंड का किधर होगा? बीसीए सेकंड रूम में होगा। हाँ, उधर भी हर एक ब्लॉक में किधर भी बैठ सकता है। हम कॉमन कंपैरेटर्स कर यस, सकते हैं। यस, दैट इज द आंसर। क्योंकि जो कंपैरेटर 12 या 16 मैंने लगाए, मैं वही 16 कंपैरेटर इस्तेमाल करूंगा उस वक्त दूसरे, क्योंकि जब मैं एक ढूंढ रहा दूसरे हूँ में देखने। तब दूसरा उस वक्त नहीं ढूंढ रहा हूँ ना। सो आई कैन रीयूज दोज कंपैरेटर्स। तो उससे कंपैरेटर मेरे को हर एक ब्लॉक के लिए नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि एक ब्लॉक में एक सेट में जितने ब्लॉक्स हैं उतने कंपैरेटर लगने वाले हैं, और मैं वो रीयूज करूंगा हर सेट के लिए, ठीक है ना। समझ आ रही है? सो इसमें दोनों चीजें आ गई। डायरेक्ट मैपिंग से मैं लगा रहा हूं कि भाई, क्योंकि डायरेक्ट मैपिंग में एक बहुत खूबसूरत चीज थी कि आपको कुछ करना ही नहीं है, एड्रेसिंग है, उसी में से आप निकाल रहे हो किधर बैठा है, ठीक है ना। तो वो बड़ा सिंपल है। लेकिन वो पंगा हो गया था कि रैम कैशे खाली हो रही थी कि हम ढूंढ पा रहे थे, इसलिए हमने सेट कर दिया, और सेट में एसोसिएटिव कर दी कि किधर भी जा सकता है। तो दोनों को इस्तेमाल करके हमने सेट एसोसिएटिव कर दिया। अब आपका किस्सा यहां पे है, क्या 1 वे एसोसिएटिव है, 2 वे एसोसिएटिव है, 4 वे एसोसिएटिव है, 8 वे एसोसिएटिव है, और के वे एसोसिएटिव है, ठीक है। तो उसमें ये पंगा है कि अगर 1 वे एसोसिएटिव है, 1 वे एसोसिएटिव का मतलब है कि एक सेट में एक ब्लॉक, एक सेट में, दिमाग ओपन रखो और मुझे आंसर करो। जो 1 वे एसोसिएटिव है उसका मतलब है कि एक सेट में एक ब्लॉक, ठीक है। उससे क्या फायदा आएगा? एक कंपैरेटर यूज हो जाएगा। हाँ, एक कंपैरेटर यूज हो जाएगा। जब एक सेट में एक ही ब्लॉक है, ठीक है, सिंगल तो कंपैरेटर यूज। सिंगल कंपैरेटर आप करोगे इसको इस्तेमाल, तो ये तो वही हो गया ना, वो डायरेक्ट मैपिंग का किस्सा ही।
कंपैरेटर तो एक ही लगेगा ना, वही जो डायरेक्ट मैपिंग में हो रहा था. So it is as good as direct mapping then. There is no difference because मुझे बता रहा है कि जो पहला वाला बंदा है वो सेट 0 में जाएगा, जो ये फलानी फलानी है वो सेट इसमें जाएंगे. ये तो अब सेट तो अब फजूल है, क्योंकि सेट और ब्लॉक एक ही है, क्योंकि इट्स एज गुड एज कि सेट है ही नहीं कुछ, वही ब्लॉक्स हैं अपने 0 1 2 3 कैश के, है ना. सो कुछ सेट तो कुछ है ही नहीं अब, क्योंकि ये तो वही हो गया ना जो डायरेक्ट मैपिंग था. डायरेक्ट मैपिंग में भी आपको ब्लॉक्स थे 0 1 2 3 4, फिर हम बता रहे थे ये वाला जाएगा 0 में, ये जाएगा 1 में, ये जाएगा 2 में, एंड सो ऑन, है ना. तो अगर हमें वन वे सेट एसोसिएटिव है, इट इज नथिंग बट अ डायरेक्ट मैपिंग, इट इज नो डिफरेंस. सो वी मूव ऑन टू टू वे सेट एसोसिएटिव. In two way set associative, what we do is we create two blocks. We create two blocks per set. Two blocks per set. यानी कि अब हम क्या काम कर रहे हैं कि दो ब्लॉक्स रख रहे हैं पर सेट, यानी कि एक सेट है इसमें दो ब्लॉक्स हैं, ये दूसरा सेट है इसमें दो ब्लॉक्स है, ये तीसरा है एंड ये चौथा है, इसमें दो ब्लॉक्स हैं. ठीक है ना. लेकिन जब मैं डालूंगा, मुझे डायरेक्ट मैपिंग से पता होगा कि फलाना सिर्फ सेट 0 में जा सकता है, फलाना सिर्फ सेट 1 में जा सकता है. Do you understand that? डायरेक्ट मैपिंग का किस्सा जो था ना वो सेम है यहाँ पे, लेकिन किधर जाएगा, इधर जाएगा या इसमें जाएगा वो पता नहीं. वो एसोसिएटिविटी है, वो एसोसिएटिव है. एसोसिएटिव मतलब उसमें कंप्यूटर लगाना पड़ेगा दोनों के साथ, इधर है कि इधर है. अब मैं वो दो कंप्यूटर फिर इस्तेमाल करूंगा, रीयूज करूंगा इनके लिए भी एंड सो ऑन. नाउ देयर इज फोर वे एसोसिएटिव. फोर वे एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि मैंने चार ब्लॉक्स का एक सेट. हाँ, तो अगर आप चार का एक सेट बनाते हैं तो दैट्स फोर वे. ठीक है ना. अगर मेरे पास यहाँ पे कुल कितने थे 8, अगर मैं 8 वे बनाऊंगा, 8 वे सेट एसोसिएटिव, व्हाट डज दैट मीन 8 वे? एट वे का मतलब है कि 8 सर 8 ब्लॉक्स होंगे एक ब्लॉक्स सेट. पर सेट, लेकिन मेरे पास 8 ही थे कुल. उसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही सेट होगा, सेट 0. ठीक है, इसमें होगा सिर्फ सेट एक ही. सो व्हाट इज दिस इक्वल टू? कैन यू सी द डिफरेंस? मुझे यहाँ पे कितने लगाने पड़ेंगे कंपैरेटर्स? 8 सर. वन वे की तरह ये भी हो जाएगा, 8 डायरेक्ट लगाने जैसे. पड़ेंगे. नहीं, अगर वन वे आपने किया उसमें आपने सेट में एक ही ब्लॉक रखा ना, ये डायरेक्ट मैपिंग हो गया. और अगर सर इस वाले आपने केस में ये फुली एसोसिएटिव हो गया, ये फुली, क्योंकि आपको हर एक के साथ कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, सेट में कहीं पर भी जा सकता है ना. बिल्कुल सर. सेट में हम क्या कहते हैं, कहीं पर भी जा सकता है, कंप्यूटर लगाना पड़ेगा. जब जितने ब्लॉक्स आपके हैं उतना आपने सेट में रखा, जितने कैश के आपके ब्लॉक्स थे वो सारे एक ही सेट में रखे, तो कंप्यूटर कितने लगाने पड़ेंगे? सारे ही, जितनी कैश है. ठीक है ना. तो ये तो सेट ये तो फुली एसोसिएटिव हो गया ना. सो इसलिए हम वो नहीं करेंगे. अगर मेरे पास 8 कैश साइज है तो उसका 8 सेट बनाएंगे, तो वो फुली एसोसिएटिव हो जाएगा, वो सेट एसोसिएटिव तो रहेगा ही नहीं. और अगर मैंने वन वे कर दिया कि सेट में एक ही ब्लॉक रख दिया, वो तो डायरेक्ट मैपिंग हो गया, वो फिर से सेट एसोसिएटिव नहीं हो गया. इसलिए मुझे कुछ इन बिटवीन करना चाहिए. ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यस सर. तो इसलिए जो एड्रेसिंग मेरे पास होगी उसमें 3 चीजें होंगी. नाउ यू शुड बी एबल टू टेल मी. ठीक है, यू शुड बी एबल टू टेल मी जनाब. एक तो n बिट्स हैं, फिर s बिट्स हैं, यहाँ पे इंडेक्स है और टैग है. देखिए पहले यहाँ देखें आप, पहले देखें आप. पहले मैं सिंपल करता हूँ, इसको 2 मिनट छोड़ देते हैं. ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ आपको. अभी मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा यहाँ पे सेट है, एक सेट 0 है, ये सेट 1 है, ये सेट 2 है और ये सेट 3 है. ठीक है, और इधर पे किधर भी हो सकता है. ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे इसमें किधर भी हो सकता है, इसलिए टैग स्टोर करना पड़ेगा, टैग स्टोर करना पड़ेगा. और बाद में मुझे सारे टैग्स के साथ कंपैरेटर लगाना पड़ेगा कि भाई है कि बराबर के नहीं, जो यहाँ पे, तो ये s यहाँ पे वही काम करेगा. ठीक है, सॉरी दिस टैग विल बी कंपेयर्ड विद दिस, जो टैग यहाँ पर है, टैग बिट्स. तो ये इंडेक्स क्या होगा यहाँ पे? व्हाट विल इंडेक्स टेल अस? Set Index, कौन? very good. The index bits will tell us which set.
कि क्या मेरे को इस सेट में जाना है या इस सेट में जाना है या इस सेट में जाना है, इस सेट में जाना है। तो इंडेक्स फॉर एग्जाम्पल उसने बताया कि मेरे को S2 पे जाना है, फॉर एग्जाम्पल पता चल गया कि S2 पे जाना है, ठीक है ना। अब S2 में वो बंदा जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो किधर भी हो सकता है ना, वो कहीं पर भी बैठ सकता है, बिकॉज इसमें एसोसिएटिविटी है, एसोसिएटिव मेमोरी अंदर है कि उधर किधर किधर पे भी हो सकता है। इसमें सारे में कंपैरेटर लगे होंगे और वो किसके साथ कंपेयर करेंगे फिर, टैग के साथ। टैग्स के साथ। अब कोई बताएगा मुझे ऊपर वाले का बंदा कि ये एन क्या होगा फिर यहाँ पे, व्हाट इज द एन देयर, समवन टेल मी, because I have we have discussed this thing yesterday only we discussed this thing in the direct mapping. वैलिड में नहीं। किस ब्लॉक में है? जी सेट में किस ब्लॉक में होगा? सेट में मैंने आपको बताया कि किस ब्लॉक में होगा, वो तो भाई साहब टैग बताएगा क्योंकि कंपैरेटर लगे हैं सबके साथ, ठीक है। मतलब जो एक ब्लॉक है वो टैग के साथ हमें कंपेयर करना होगा फिर। एब्सोल्युटली जो इसने बताया ना सेट, देखिए इसने बताया सेट कौन सा सेट है, पता चला कि ये वाला सेट है, ठीक है। अब इधर किधर पे बैठा है, किस ब्लॉक में बैठा है, वो टैग बताएगा, टैग कंपेयर जिसके साथ होगा उधर है। ब्लॉक ऑप्शन में 0 और 1 में है, 0 है में है या 1 में है। हाँ 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 बताओ, जो कल पढ़ाया था, वेरी गुड। कौन बोल रहा है? साहिल आई गेस। ब्लॉक ऑप्शन वही बोलेंगे ना, 0 में है कि 1 में है। व्हाट डज दैट मीन, वो 0 में है 1 Valid किधर invalid, है, sir. वो 0 1 किधर है? सेट में होगा ना, अंदर होगा ना, 2 पार्टीशन किए होंगे ना हमने सेट में। सेट में जो पार्टीशंस हमने किए ना वो दैट दे आर द ब्लॉक्स। यस सर, वही ब्लॉक्स में होगा ना, किस वाले ब्लॉक में, 0 ब्लॉक में कि 1 ब्लॉक में। अगेन नहीं वो पक्का नहीं कल कर पढ़ा रहे, था हमने, वो पक्का नहीं कर हमने रहे हो वो ना। ऐसे पढ़ा था। हाँ कल पढ़ा था लेकिन पक्का नहीं कर रहे हो ना। किस ब्लॉक में वो टैग बताएगा, वही तो बता रही थी ना वो स्नोबर, जो किस ब्लॉक में है वो टैग बताएगा। लेकिन हमने फिर पर ब्लॉक कितने बाइट्स हमारे पास है, वो मसला है। पर ब्लॉक हाउ मेनी बाइट्स, ठीक है ना। we can have many, जैसे कभी हमारे पास पर ब्लॉक 2 बाइट्स थे, ये 0 1 जो आप बता रहे हो, ठीक है ना। अब किस बाइट में है, इधर है कि इधर है, ठीक है, वो ये बताएगा n बिट्स। कभी कभार में पर ब्लॉक 4 बाइट्स भी हो सकते हैं। एक सेट में मेरे पास, देखिए आराम से अच्छे से सुने, एक सेट में मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ठीक है, ये 8 ब्लॉक्स मेरे पास हैं 0 to 7। आई हैव 8 ब्लॉक्स पर सेट, ये सेट 0 है, ठीक है ना। किस सेट में वो इंडेक्स बताएगा, किस सेट में कितने है बाजी, बाजी कितने बैठा है, किस सेट में बैठा है, वो ये बताएगा इंडेक्स, ठीक है ना। उसके बाद ये n क्या बताएगा कि इस वाले बाइट में है, इस वाले बाइट में है, इस वाले बाइट में, इस वाले बाइट में, किस बाइट में बैठा है, ठीक है। सो वी कुड से कि भाई ये हाइलाइटर था इसको कहीं पे, पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये पता चला कि इस वाले बाइट में हो सकता है, अभी नहीं पता कि किस ब्लॉक में है, ठीक है ना। फिलहाल मुझे पता चला, इस S से पता चला कि S0 सेट में है या S1 में है या S2 में है। फर्ज कीजिए S2 सेट है तो पता चला S2 सेट में। उसके बाद जो n है वो बताएगा इनमें से किस बाइट में हो सकता है, क्या 0 बाइट में हो सकता है, 1 बाइट में, 2 में, 3 में। फिलहाल मुझे पता है ये 1 बाइट में हो सकता है, इट कैन बी इन 1 बाइट, बट इट कैन बी एनीवेयर इन द सेट, वी डोंट नो। So how we figure that out? We use the tag and compare with each and every one. Yes. With the tag we compare each and every block, and now this one ना, जो मुझे पता चला ये वाली बाइट, 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 ये वाली, कहीं पर भी हो सकता है ना। I use the comparator and chuck it. अगर टैग बराबर निकला तो उधर है, अगर नहीं तो कैश मिस है। समझ में आ गया? Yes, any Yes, questions? sir. Yes, sir. Getting? Now getting? Yes, sir. तो फिलहाल जो है, अब कितनी बिट्स इस्तेमाल होंगी डिपेंड्स अपॉन की सेट एसोसिएटिव मैपिंग क्या 1 वे है, 2 वे है, 4 वे है, 8 वे है, क्या वे है ना। Yes, sir. कॉमन सेंस है। अगर 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 आपके पास 2 सेट्स बन रहे हैं, अगर आपके पास कितने सेट्स बन रहे हैं, 2 sets. S0 S1,
कुल आपके पास फॉर एग्जांपल 8 ब्लॉक्स थे फॉर एग्जांपल, और मैंने 4 इसमें रखे 4 इसमें रखे, तो कुल कितने सेट बन गए? 2। 2 तो सेट। अगर 2 सेट बन गए उसके लिए कितनी बिट जरूरत है मेरे को ये रिप्रेजेंट करने के लिए? 1 बिट। सो आई कैन से आइदर 0 और आइदर 1, सो आई नीड 1 बिट ओनली टू रिप्रेजेंट दैट एंड सो ऑन। ठीक है ना? सो देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास है 6195 एड्रेस मेरे पास है, बाइट एड्रेस 6195, ये किधर जाएगा? ठीक है ना? तो पहले इसका बाइनरी देखेंगे, ठीक है ना? उसके बाद ईच ब्लॉक है 16 बाइट्स। हम कह रहे हैं कि हर एक ब्लॉक को 16 बाइट्स है। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? इट इज बाइट्स पर ब्लॉक। हाँ, यही वाले सेट के अंदर कितने हैं ब्लॉक्स वो अलग चीज है, लेकिन एक ब्लॉक में कितने बाइट्स हैं बाइट्स है। यस सर। वो किससे करेंगे हम? रिप्रेजेंट यूजिंग द एन, है यस ना? सर। यस सर। तो- एन। हाँ, तो ये कह रहा है कि 16 बाइट्स, यानी कि n विल बी 4, is it? Because 2 to the Yes, power sir. 4 is 16. तो So the n which we are asking for from the previous diagram, this n is 4 for this. Why? Because I have per, इसने नहीं दिखाया है, but per block there are 16 such bytes. Okay, this is what he's saying. वहीं पर तो n लगेगा मुझे जरूर. So that means that, what does that mean? That means the first 4 bits will tell us the first n bits, whatever the n is, because अगर इसने कहा 16 bytes, अगर ये कहता कि नहीं पर ब्लॉक मेरे पास 8 ही bytes हैं, तो मेरे को कितनी बिट्स लगती है जरूरत? n कितना होता फिर? 3, because 2 to the power 3 is 8, है ना? तो 3 ही Yes, बिट्स मेरे को, ये जो पहली 3 बिट्स होती यही लगती है n के लिए। लेकिन चूंकि 16 बाइट्स हैं तो मेरे को पहले 4 बाइट्स जो है ना ये n के लिए लगेंगे। द व्हाट इज द n? द ब्लॉक ऑफसेट, या जिससे हम पता चलेगा कौन सी बाइट पर ब्लॉक। हारिस आपको समझ नहीं आ रहा बेटा? या सर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा ना बताना प्लीज। हाँ, ओके सर। ठीक है। तो कौन सी बाइट पर ब्लॉक, मतलब अगर आपके पास 16 बाइट्स पर ब्लॉक है, यानी कि एक शेल्फ के अंदर 16 आपके पास जगहें हैं, तो उनको एड्रेसिंग करने के लिए मेरे को क्या करेगा? 4 बिट्स करना पड़ेंगे। पहला वाला हो गया Yes, sir. 000, दूसरा हो गया 0001, एंड लास्ट वाला हो गया 111115, है ना? सो आई हैव टू यूज 4 बिट्स। सो फर्स्ट 4 बिट्स किस लिए लगेंगी? फर्स्ट 4 बिट्स, द लोवेस्ट 4 बिट्स आर ब्लॉक ऑफसेट। ब्लॉक ऑफसेट। Yeah, right? So what is block offset telling us? Byte address. Byte address, which byte per block, ब्लॉक के अंदर कौन सी बाइट। तो इधर बता रहा है कि 0011, so that means 3, यानी कि अगर 16 मेरे पास यहाँ पे बाइट्स हैं, so ये जो बंदा है ये 3 में हो सकता है। 0 1 2 3 ये इधर हो सकता है, because this one is 0000, this one is 0001, and this is 0010, and this is 0011. So ये यहाँ पे हो सकता है 0, पता नहीं क्या हो गया, मैसअप हो गया, 11, that is 3। ठीक है ना? समझ आ रही है? Yes, sir. Yes. उसके बाद जो बिट्स होने वाली है वो किस में लगेंगी? सेट को फाइंड करने में। कितने हैं? 5। लेकिन वो डिपेंड करता है कि मेरा कौन के वे, मतलब 1 वे 2 वे 4 वे कौन वे सेट एसोसिएटिव है। अगर मेरे पास 1 वे कैश है, 1 वे कैश में क्या होता है कि सेट जो जितने सेट मींस, बिकॉज ईच एंड एवरी ब्लॉक इज ए सेट, मींस एक सेट में एक ही ब्लॉक है, सो इट इज एज गुड एज डायरेक्ट मैपिंग, राइट? Yes, sir. सो उसमें मुझे एड्रेसिंग करने के लिए कितने बिट्स लगेंगे अगर 1 वे कैश है? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 8 कैश ब्लॉक्स हैं, अगर मेरे पास 8 कैश ब्लॉक्स हैं और हर एक बंदा तो सेट ही है ना, ये भी ये सेट 0, ये सेट 1, ये सेट 2, यानी कि हर एक ब्लॉक एक सेट है। क्योंकि मैंने ग्रुपिंग क्या कर दी, मैंने आपको बोला मैं ग्रुप में रखूंगा, आपको मैं ग्रुप में रखूंगा 4 4 5 5 6 6 स्टूडेंट्स। फिर मैं क्या कर रहा हूँ काम, मैंने एक ग्रुप में एक ही बच्चा रखा। अगर मेरे पास 8 बच्चे थे, अब ग्रुप भी कितने हो जाएंगे? 8, क्योंकि मैंने एक ग्रुप में एक ही बच्चा रखा ना। Yes, sir. सो इट इज एज गुड एज नो ग्रुपिंग, राइट? Yes, sir. ऐसे भी 8 बच्चे थे, वैसे भी 8 बच्चे हो Yes, गए, sir. ग्रुपिंग तो कुछ हो गई नहीं।
तो उसके मतलब है 8 बच्चों को, अगर 8 यहाँ पे ब्लॉक्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए मैं 3 बिट तो लगेंगे, बिकॉज 0 0 0 अप टू 1 1 1, सो 0 अप टू 7 दैट इज 8, यानी कि मैं इसको कहूंगा ये हो गया 0 0 0, ये हो गया 0 0 1 एंड सो ऑन, एंड ये हो गया 1 1 1, क्योंकि अगर 8 है तो 3 बिट्स तो लगेंगे ही, है ना। सो इट इज एज गुड एज डायरेक्ट मैपिंग, देन देयर इज नो फायदा जो हम कर रहे थे सेट एसोसिएटिव का। अब उसके बाद अगर टू वे क्या, अगर टू वे है ना, तो टू वे में अगर मेरे पास 8 पुल है तो सेट्स कितने होंगे मेरे पास, क्योंकि मैं 2 2 बच्चे रख रहा हूं, अब 2 2 ब्लॉक्स रख रहा हूं अब एक में ग्रुप में, 4 सेट्स, तो 4 सेट्स होंगे। 4 सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स लगेंगी, 2 बिट्स लगेगी, 2 बिट्स, 0 0 0 1 1 0 and 1 1, 1 1, so there that then these 3 bits are not the set, the block जिसको मैं सेट जो मैं इंडेक्सिंग से कहते हैं, इंडेक्स करूंगा मैं सेट इंडेक्स, नो आई कैन यूज ओनली 2 बिट्स, आई हैव टू यूज ओनली व्हाट, द फर्स्ट 2 बिट्स विल टेल मी देन द which set it will go, the first 2 bits telling hey bro it's in a third set, so I have to go in a third, that's the green here, okay, the first 2 bits। अगर अब 8 वे कैश होगा, it's 4 way, sorry it's a 4 वे कैश, अगर 4 वे कैश होगा 8 ब्लॉक्स हैं तो कितने ग्रुप्स बनेंगे मेरे पास, आई हैव लेस देन 1 मिनट, क्विकली टेल मी। 2 ओनली 2 सेट्स बनेंगे, 2 सेट के लिए sets कितनी बिट चाहिए जरूरत, 1 बिट, एक ही बिट बताएगी या 0 है कि 1 है, तो 1 बिट यानी कि पहली बिट जो होगी वो बताएगी किस सेट में है, 0 में है या 1 में है, या 1 तो में, पहली बिट 1 बताएगी तो 1 में है, ये वाला हो गया आपका सेट। लेकिन इधर किधर पे भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवेयर हियर, so I need to use comparators and compare it with the rest of the tag, the rest of the things will be the tag, whatever Yes, is sir. left out after that will be the tag, does it make sense? yes sir, ये We have just a minute left, I don't think it's a half minute left, so this is the addressing। यहाँ पे इसने ब्लॉक ऑफसेट नहीं दिखाया है, डायग्राम्स में नहीं दिखाते हैं कोई, इसीलिए